Okay, so we'll start with the revision first. Okay, so what is an operating system? Well, okay, let me just move this on. Okay, so operating system is basically a system software that manages the hardware, computer hardware, and software resources as well. It provides the common services for computer programs, example DOS, Unix, Windows, and Macintosh. It comprises of basically four things: user, application, operating system, and hardware. So in computer system, we find these four things, and out of which you can see this is the operating system. So the operating system manages all of the software and hardware on the computer and controls the execution of the user's program. Then we'll talk about the generations of operating system. There are four generations of operating system. The first generation from 1945 to 55. The second generation is from 55 to 65. The third one is from 65 to 80. And the fourth one is from 80 to present. First generation was all about the vacuum tubes, plug boards, and punch cards. Second one was about transistors, mainframe, and magnetic tape. The third generation was about scientific computers and really large computers, basically. And they were really expensive, and there was an introduction of multi-programming in that generation. But in today's generation, which is from 1980 up until present, there's an increase in the use of personal computers because they are more affordable. Hi, Kritika. Can you hear me? Hello? Hello, can you hear me? Hello. Yes, I can hear you. Hi, Kritika. Right now, not like others haven't not joined yet. So I've started it because even I have to go after completing this session. Okay. So we'll Okay. continue, and if others want to join, they can join. So basically, I'm just starting with the revision. I'm recording this also, so in case if others want to watch later, they can. This week we have started with the operating system, and we've gone up until the scheduling of algorithms. So I'm just doing a recap first, and then we'll start with the algorithms, basically scheduling algorithms. Okay. So All right. first, okay, there's one more guy joining in. So Maya is joining in. Okay. Let her join first. Okay. Looks like audio is not connected yet, but she's joined. Hi, Sumaya. Hello. Hi, Sumaya. Thanks for joining Hi. in. We'll just continue with the recap, and then we'll move on to the next topic. Were you there yesterday? You were there, right? No, I didn't come yesterday. Okay, no problem. So we'll just continue with the recap. We discussed in this week before we spoke about the types of operating system. There is multi-programming operating system, there is multi-processing, there is network operating system, and there's also distributed operating system. In the entire book of operating system, you will hear these words time and again. So it's important that we understand what these are. The best way to remember what is a multi-programming is in the word itself. So it says multi-programming, which means multiple programs are executed, but only by a single processor. However, in multi-processing system, multiple processors execute multiple programs simultaneously. So in both cases, multiple programs are executed. The only difference between the two is that in the first case, single processor executes them. In the second case, multiple processors execute multiple programmings. Okay.
Next is network operating system and distributed operating system. Both are basically a collection of computers which are interconnected with each other. In the first case, they are physically interconnected, and in the second case, they are connected by a network. Another difference is that in network operating system, each machine runs an entire operating system. मतलब हर मशीन का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. मतलब एक एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा भी यूज कर सकता है, शेयर्ड है वो, इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है? तो पहला होता है प्रोसेस को मैनेज करना. सीपीयू जो होता है वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है. तो अ प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम अपने एग्जीक्यूशन स्टेट में प्रोसेस कहलाता है. उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है मेमोरी को मैनेज करना. तो प्रोसेस को तो मैनेज करता है, साथ साथ मेमोरी को भी मैनेज करता है. और सबको पता है कि मेमोरी जो है सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट है कंप्यूटर का. हमारा रैम रैम ज्यादा महंगा होता है, हार्ड डिस्क कम महंगी होती है. एंड memory is nothing but a large array of words or bytes, each with its own address. काफी सारी एल्गोरिदम्स हैं जो यूज होती हैं मेमोरी को मैनेज करने के लिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. फिर होता है फाइल मैनेजमेंट. तो तीन मेन काम है ऑपरेटिंग सिस्टम में. पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, और तीसरा है फाइल मैनेजमेंट. ठीक है, अब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. तो प्रोसेस के अलग अलग स्टेट्स हैं. पहला स्टेट है न्यू. जब प्रोसेस नया क्रिएट होता है, सबसे पहले जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो हार्ड डिस्क में जाता है. दूसरा है रेडी. रेडी स्टेट मतलब प्रोसेस एकदम रेडी है उसको असाइन करने के लिए प्रोसेसर को. तीसरा है रनिंग, मतलब प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा है. देन वी हैव वेटिंग, सस्पेंडेड और ब्लॉक. किसी वजह से अगर वो वेटिंग है, सस्पेंडेड है या ब्लॉक्ड है. देन वी हैव हॉल्टेड और टर्मिनेटेड, मतलब उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, जो भी काम था उसने कर लिया और अब हॉल्ट हो गया है और या फिर टर्मिनेट हो गया. तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस. तो पहली चीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है, वो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब कोई अगर काम कर रहे हैं, किसी ने आकर इंटरप्ट कर दिया. जैसे मैं मान लो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी मॉम आ जाए यहाँ पे और बोले कि नहीं अभी जाके बाहर से सामान लेके आओ. तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मान लो यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगा, वहां पे सेव करूंगा अपना काम, वापस जाऊंगा, वो काम खत्म करके आई विल कम बैक एंड आई विल रिज्यूम फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट. तो यही होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. अगर कोई आप काम कर रहे हो, आप पॉज करते हो और अपना कॉन्टेक्स्ट स्विच करके दूसरा काम करते हो, एंड देन यू गेट बैक. तो इस तरह कंप्यूटर में भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज स्विचिंग ऑफ अ सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर. तो सीपीयू का काम है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना. तो सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को स्विच करता है. अगर एक को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वहां पॉज करके दूसरे को एग्जीक्यूट करने लगता है. तो यही डायग्राम में भी दिखाया है, ये एग्जाम में डायग्राम आप बना सकते हो. प्रोसेस ए, प्रोसेस बी. प्रोसेस ए को इंटरप्ट हुआ, मान लो कोई और हायर प्रायोरिटी का प्रोग्राम आया, उसने उसको इंटरप्ट किया, उसने उसको सेव किया रजिस्टर, जो भी काम जहां तक हो चुका था उसका रजिस्टर सेव किया, रीलोड किया रजिस्टर प्रोसेस बी का, एग्जीक्यूट किया प्रोसेस बी को, उसका फिर सेव किया इंफॉर्मेशन, और ए का जो जहां पे से भी खत्म हो गया था प्रोग्राम वहां से रीलोड किया और फिर एग्जीक्यूट किया, ताकि फिर से स्टार्ट ना करना पड़े. तो यही है आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. देन वी हैव थ्रेड्स. तो हर प्रोसेस के तो थ्रेड्स आर नथिंग बट लाइट वेट प्रोसेसेस which are independently scheduled parts of a single program. तो एक प्रोग्राम के बेसिकली इंडिपेंडेंटली शेड्यूल्ड पार्ट होते हैं, उसको थ्रेड्स कहते हैं. तो काफी सारे सिस्टम मल्टी थ्रेड भी होते हैं, सिंगल थ्रेड भी होते हैं. अगर मल्टी थ्रेड होंगे तो सेवरल इंडिपेंडेंट सब प्रोसेसेस व्हिच वर्क ऑन अ कॉमन डेटा एंड इफ ईच ऑफ दीज पीसेस कुड रन इन पैरेलल. तो कई सारे टास्क वो पैरेलली रन कर सकता है, मतलब एक का वेट नहीं करेगा कि एक खत्म होगा तभी दूसरा स्टार्ट करेंगे. वो पैरेलली थ्रेड्स के, मल्टीपल थ्रेड्स के जरिए वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ये उसका डायग्राम है बेसिकली.
इसमें ये हमारा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि नया प्रोग्राम जब क्रिएट होता है न्यू स्टेट में, तो वो हार्ड डिस्क में सबसे पहले जाता है। उस प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शन 1 2, मान लो कोई फंक्शन आपने लिखा है, उसका काम है जोड़ना, फिर जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करना, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई है। जब उसको फिर प्रोग्राम आता है रैम में बेसिकली। तो रैम में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, और हर प्रोसेस के अंदर उसके थ्रेड होते हैं। फिर उसके बाद थ्रेड की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, किसी की हाई होती है, किसी की लो होती है। तो डिपेंडिंग ऑन अगर कोई एक एग्जीक्यूट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन अगर कोई और हायर प्रायोरिटी का आया, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो भी मैंने समझाया वो होती है। शेड्यूलर का काम है शेड्यूल करना कि कब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, किसको पहले करना है, एक पहले जाएगा या दूसरा पहले जाएगा, वो शेड्यूलर का काम है। वो असाइन करेगा सीपीयू को कि भाई अब तुम्हें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, इसको होल्ड करना है। तो वो शेड्यूलर अभी हम पढ़ेंगे। So process scheduling. All computers resources are scheduled before use. Scheduler refers to a set of policies and mechanisms supported by operating system that controls the order in which the work is to be completed. तो यही मैंने बताया कि शेड्यूलर काम है असाइन करना टास्क हमारे सीपीयू को, और किस ऑर्डर में कौन पहले जाएगा वो शेड्यूलर डिसाइड करता है। ओके और उसका दूसरा काम ये भी है कि उसको इंश्योर करना है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन सबसे एफिशिएंट वे में हो और हायर थ्रूपुट हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम गिवन इंटरवल में हो जाए। उसी को थ्रूपुट करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो शेड्यूलर का काम है कि इस तरह से असाइन करे सीपीयू को, इस तरह से चीजों को शेड्यूल करे कि सीपीयू का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो, ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए कम से कम टाइम में। ठीक है, अब ये डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग स्टेट होता है प्रोसेस का, न्यू होता है, रेडी होता है, रनिंग होता है, टर्मिनेटेड होता है, सस्पेंडेड होता है। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम क्रिएट हुआ नया प्रोग्राम, तो वो हार्ड डिस्क में आया। हार्ड डिस्क में आने के बाद में अलग अलग शेड्यूलर है, जैसे मैंने बताया शेड्यूलर काम है असाइन करना उसको सीपीयू को टास्क। तो अलग अलग तरह के शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, और मिड टर्म मीडियम टर्म होता है। लॉन्ग टर्म का काम है कि सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम को उठा के प्राइमरी मेमोरी में लाना। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम। तो सेकेंडरी मेमोरी से उठा के वो प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में लाएगा वो, और रेडी क्यू में डाल देगा। इस रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में ले आने का काम हमारे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का है। तो कब जाएगा रेडी से रनिंग में, ये डिसाइड करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसके बीच में हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट आ जाए, जैसे कि आपने कुछ प्रोग्राम रन किया, उसके बाद में आपको इनपुट रिक्वेस्ट है उसकी, यूजर से आपको कुछ नंबर्स लेने हैं, उसके बाद ही आप आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये उसको कहते हैं इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। तो उसकी वजह से वो ब्लॉक्ड है, यूजर ने एंटर नहीं किया। तो तब तक तो हम सीपीयू को फंसा के नहीं रख सकते ना, काम तो उसको करना पड़ेगा। तो तो तब तक के लिए, जब तक कि इनपुट नहीं आता, हम उसको वेटिंग क्यू में डाल देते हैं। और वेटिंग के बाद जब उसकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है, तो वापस वो रेडी क्यू में जाता है। फिर उसके बाद रेडी क्यू में जाने के बाद वापस शॉर्ट टर्म इसको रनिंग में डाल देता है। जब काम खत्म हो जाता है तो टर्मिनेट हो जाता है। एक सिचुएशन और आएगी जहां पे मान लो कई सारे प्रोग्राम हैं, सबकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो क्यू में जाते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा जब रैम भर जाएगा, उसमें स्पेस नहीं बचेगी। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, तो हमारे पास हार्ड डिस्क तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम टेम्परली, क्योंकि मेमोरी भर चुकी है, अब नए वाले जो आ रहे हैं हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में रख सकते हैं, यानी हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। ये काम आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। वो प्रोसेस को सेंड करता है सेकेंडरी मेमोरी में जब ये आपका रैम भर जाता है, और उसका स्टेट रखता है सस्पेंड। जब यहाँ पे खाली हो जाती है जगह और इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट खत्म हो गई, तो वापस से लेके आ जाता है वेटिंग एंड देन रेडी एंड देन फाइनली रनिंग एंड टर्मिनेटेड। तो ये मिड टर्म का मीडियम टर्म शेड्यूलर काम है। तो इस तरह से आप समझ गए कि तीन शेड्यूलर का क्या क्या काम होता है, प्रोसेस के स्टेट अलग अलग कैसे होते हैं, और कैसे वो लाइफ साइकिल उसकी होती है। क्लियर है? यस, नो, मे बी गाइस? Yes. ओके, गुड। हम ना रोज इस चीज को रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज दिमाग में बैठेगी नहीं।
और फिर हम एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। मतलब इस सेशन में कोई मतलब नहीं अगर वो चीज़ रिटेन नहीं हो रही दिमाग में तो, राइट। एग्जाम के दिन हमें टेंशन नहीं लेना है कि हमें पढ़ना है और जाग के पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं, पहले से ही हमारा सब रेडी रहेगा। तो इट्स important guys that you join every day, so then you don't skip पहले के दिन का। ओके, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर अभी बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से नहीं एक्सप्लेन करूंगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इसमें मैंने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में एक ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आज दूसरा बताऊंगा। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि दो तरह की शेड्यूलिंग होती है, एक प्रिमिटिव होती है और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि मान लो कोई टास्क आया तो उसको हम इंटरप्ट कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन दूसरा टास्क अगर आया जो कि हायर प्रायोरिटी का है, तो हम पहले वाले टास्क को होल्ड करके क्यू में डाल के रोक के नया वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। सो an executing process can be interrupted and move to another state। जबकि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या है, हम एक बार प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसको खत्म ही होना है, या तो फिर जब या तो वेटिंग में जाना है या तो खत्म होना है, उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते बीच में। ये दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल है इसका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग और SRTN। एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देंगे, बोलेंगे कि प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव से जो भी आपको एग्जाम्पल में देंगे आपको सॉल्व करना है, और कौन से एल्गोरिदम लगानी है, राउंड रॉबिन लगाना है, SRTN लगाना है, कोई भी एक आपको देगा वो करने के लिए। और मोस्ट प्रॉब्ली वो शुरू के ही क्वेश्चन होते हैं वो, और ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के तो होती हैं वो, मैंने पेपर्स में देखा है। और ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको आना ही आना है। नॉन प्रिमिटिव ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जहाँ पे one CPU has been assigned to a process, CPU cannot be taken away from the process until it goes in waiting or terminated state। एग्जाम्पल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फंडा है कि जो प्रोग्राम पहले आया, मतलब जो प्रोसेस पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा। मान लो कई सारे प्रोग्राम हैं, 3-4 प्रोग्राम है, उसके हर प्रोग्राम का अपना एक प्रोसेसिंग टाइम है। एक बोलता है कि मैं 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाऊंगा, दूसरा बोलता है मैं 10 सेकंड में हो जाऊंगा, तीसरा बोलता है 4 सेकंड में हो जाऊंगा। तो उसको इस एल्गोरिदम में ये फर्क नहीं पड़ता कि किस कौन ज्यादा टाइम लेगा, उसको बस ये फर्क पड़ता है कि क्यू में पहले कौन आया। अगर 10 सेकंड वाला पहले आ जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ दूसरा वाला जो है वो कम टाइम ले रहा है इससे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसका सिंपल फंडा है। तो ये कल मैंने बताया था, इस तरह से एग्जाम में आपका आएगा क्वेश्चन। आपको इस तरह से ये वाला पार्ट नहीं देंगे, ये 3 कॉलम है ये आपको लिखना होगा। सिर्फ ये पहले 3 कॉलम जो है वो एग्जाम में लिखे होंगे। आपको प्रोसेसेस देंगे, अराइवल टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, ये सारा इन्फॉर्मेशन देगा। वो गैंट चार्ट बनाना है, कंप्लीशन टाइम वगैरह कैलकुलेट करना है, एवरेज। ठीक है, फिर होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, वेयर प्रोसेस दैट कम फर्स्ट विल बी सर्व फर्स्ट। सो इसमें क्या है, इसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, बस इसमें यह है कि कहीं पे अगर टाई हो गई, मान लो दो प्रोग्राम है और दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम सेम है, 10 सेकेंड से है, तो तब कैसे डिसाइड करें कि किसको पहले भेजना है। तो इसमें क्या है कि वो चेक करता है कि किसका प्रोसेसिंग टाइम, आई एम सॉरी यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, हाँ, एक टाइम पे अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स आ गए, 2 या 3 आ गए एक ही टाइम पे क्यू में, तो वो चेक करेगा किसका सबसे छोटा टाइम है, वो एग्जीक्यूट पहले होगा। सो द प्रोसेस that comes first will be served first, and if there are two processes which are in the ready queue at the same time, process with the shortest processing time will be executing first। एग्जाम में आपको 3 तरह के से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कह देगा शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, या कह देगा शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट, या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तीनों में से कोई भी नाम ले, आपको पता होना चाहिए कि यही है, मतलब इट्स द सेम थिंग, इट्स जस्ट कॉल्ड डिफरेंटली। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, तो मैं उसको प्ले करूंगा। अभिजीत इज वेटिंग। ठीक है, सो लेट्स प्ले इट।
I'm going to stop share and then share the screen. Hello and welcome everyone. In this video, we're going to talk आवाज आ रही है क्या? shortest job. बराबर से आ रही है आवाज? हाँ. Okay, good. I'll play now. Scheduling algorithm, which means okay. मैं बढ़ा रहा हूँ आगे से. Competition there too. Okay. So this scheduling, about SJ examination, you will be given the question that please calculate the average turnaround time, average waiting time, completion time, and throughput for these 5 processes, and each one of them have their respective arrival time. Let's say P1 has an arrival time of 0, processing time of 3, P2 has an arrival time of 2, and processing time of 6, and so on and so forth. And we can do that, we can calculate that first by creating the Gantt chart. Okay, so let me show you how that works. So we'll go ahead and create the Gantt chart first. So at the time interval 0, okay, which are the processes that have arrived? So you can see there's only one process which is arrived, which is P1, because the rest of the processes will arrive at different times. So at 0, we only have one process, which is P1. So we'll go ahead and put that P1. And we will execute it for its processing time duration. So it is 3 seconds or whatever that time unit is. So it's for 3 units. So we'll put 3 over here. Okay. Now, next, we'll check at the time interval 3. Are there any other processes that have arrived? Yes. P2 has arrived and P3 has arrived. So how would we decide which one to execute first? So if you take a look, out of the two, the criteria is that shortest job first, which means whichever job or whichever process has got the lower or the shorter processing time or burst time will be executed first. So out of the P2 and P3, whom do you think has got the, who has actually got the shorter processing time? As you can see, P3 has got, because P2 has got 6, P3 has got 1, so definitely P3 wins. That's why we'll put P3 over here, and we'll execute this for the period of 1, because that is the processing time of that. So 3 plus 1 is 4. So this will be executed for the duration of 1 time unit. So it will go up into 4. So P3 is done. P1 is done. Now at time interval 4, which are the processes that have arrived? So you can see that at time interval 4, P2 has already arrived because it arrived at 2, and P4 has also arrived. So both the processes have arrived, but which one has got the shortest burst time or processing time? You can see P4 has got the shorter because P2 has got 6, P4 has got 4. So definitely it's P4 that will win. So P4 will go here, start executing. How long will it execute for? Well, for the duration of its execution time, which is 4. So 4 plus 4 is 8. So it will execute for the duration of 4 time units. So 4 plus 4 is 8. Okay, so you've got P4. So P4 is done. Next, at time interval 8, we have 2 processes remaining, P2 and P5, and out of which one wins? Well, as you guessed it right, P5 wins because its processing time is shorter. So we'll put P5 over here, and we'll execute it for 4 units. So 8 plus 4 is 12. Okay, so that's P4. Sorry, that's P5. P5 is also done. The last one remaining is P2, so we'll run that as well. How long will it run for? Well, 6 time unit 6. So 12 plus 6 is 18. Okay. Now let's calculate the completion time. So when did P1 get completed? Well, P1 got completed at 3, right? So we'll put 3 over here. P2 got completed at 18, right? So we'll put 18 over here. P3 got completed when? 4. The time interval 4. So put 4 over here. That's the completion time of P3, P4, 8.
So we'll put 8 over here, P5 at 12. Okay, so that's our completion time. Turnaround time will be equal to completion time minus arrival time. So completion time is this, arrival time is this. So 3 minus 0 is 3. Similarly, the P2 will be 18 minus 2, which is 16. P3, 4 minus 3, which is 1. 8 minus 4, 4. 12 minus 5 is 7. Okay. Similarly, we'll calculate the waiting time. So waiting time is equal to turnaround time minus processing time. So turnaround time is this. Processing time is this. So 3 minus 3 is 0. 16 minus 6, 10. Then 1 minus 1, 0. 4 minus 4, 0. 7 minus 4, 2. Okay. So that's your waiting time. To calculate the average in the examination, it will ask you, please calculate the average turnaround time. So how do we do that? We'll just add all of these in total. So 7 plus 4, 11, 11 plus 1, 12, 12 plus 16, 28, 28 plus 3, 31. So 31 divided by how many total number of jobs or processes? 5 processes. So calculate that. 5 6 are 30. 5 2 are 10. So 6.2 is the average turnaround time. Similarly, you can calculate the average waiting time also, which is basically total of all of this, which is 13 divided by 5. So that's 5 2s are 10, and then 5 6 are 30. So 2.6. That's your average waiting time. Okay. All right then. Thank you very much. Okay guys, समझ में आ गया? Can one of you just explain just a recap of what's happening here? Kritika, do you want to try? Sorry, sir, I wasn't paying attention. No problem. So Maya, you want to try? Okay, so this is the shortest job first scheduling. Mm-hmm. So the scheduler gives the shortest job that has arrived at any given time first to the CPU. Mm-hmm. So at time 0, there is P1. So P1 is run. Okay. Then at time 3, P2 and P3 are arrived. Correct. It has a shorter processing time. Yeah. So it's run first. Okay. And after it has finished, the time is 4. Mm-hmm. And by that time, there are P2 and P4 in the queue. Correct. So since P4 is shorter, it is run first. Yes. Then at time 8. Yes, I understood. I think you got the idea. Basically, I just wanted to check if you've understood it. So I think you got the idea. So एग्जाम में ये सारा जो पहले 3 कॉलम में दे देगा, उसमें बस हमें 0 से स्टार्ट करना है और फिर हमें चेक करना है कि टाइम 0 पे कोई और प्रोसेस है क्या. कोई नहीं था इसलिए P1 लिख दिया. फिर जब वो खत्म हुआ 3 तक चलाया क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम उसका 3 था, इसलिए 3 तक चलाया और 3 पे हमने चेक किया कोई और आया है क्या. उसमें कंपटीशन है तो रूल यही लगेगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब किसका प्रोसेसिंग टाइम कम है वो विन करेगा. बस यही फंडा इसमें लगाना है. जितने भी क्वेश्चंस हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, उसमें सब में एक ही फॉर्मूला लगता है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेयरिंग टाइम, ये सारा सेम फॉर्मूला लगता है उसमें. बस हमें सिर्फ एल्गोरिथम क्या कहती है वो याद रखना है. एक बार वो याद है तो हम कोई भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एल्गोरिथम. आई विल स्टॉप दिस वन. तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो गया. अब हम कहते हैं राउंड रॉबिन. ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड है, लेट्स प्रे नहीं आए एग्जाम में बट देख लेते हैं। तो राउंड रॉबिन में सीपीयू रन्स अ प्रोसेस फॉर अ गिवन क्वांटम वैल्यू and then puts the process back in the ready queue and then runs the another process and then the same process is repeated। मतलब कोई भी हर प्रोसेस को वो एक गिवन इंटरवल के लिए रन करेगा, वापस क्यू में डालेगा, फिर दूसरे प्रोसेस को लेके आएगा, उसको एक गिवन इंटरवल के रन करेगा, और ये इंटरवल पहले से ही फिक्स होगा। एग्जाम में तुम्हें बताएगा कि हर प्रोसेस को कितनी देर रन करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो दो प्रोसेस हैं, एक का कंप्लीशन टाइम है 3 सेकेंड्स, दूसरे का 1 है। तो वो क्या करेगा, उस एग्जाम में बोलेगा कि 2 यूनिट है टाइम क्वांटम, पहले वाले को 2 यूनिट के लिए रन करेगा, वापस क्यू में भेज देगा, फिर सेकंड प्रोसेस को लेके आएगा, उसको 1 यूनिट तक रन करेगा, फिर वापस से जो बचा था पहला वाला उसको फिर से लेके आएगा, इस तरह से वो चलेगा। तो इसमें क्या होता है कि हर प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा मौका मिलता है रन करने का राउंड रॉबिन में। इसमें हम दो क्यू, इसका प्रोसेस ये सॉल्व करने का कि हम दो क्यू बनाते हैं, एक रेडी क्यू और रनिंग क्यू, ताकि हम मैनेज कर सकें कि कितना टाइम बाकी है जो ऑलरेडी रन कर चुके हैं उनका। तो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अभी मैं इसका प्ले करूंगा राउंड रॉबिन का, 1 सेकंड। ये प्रिपेयर हो गया तो 10 नंबर पक्का है, 100%। और इसमें मार्क्स कट होने के चांस बहुत कम है, बिकॉज अगर आप सही से आंसर कर रहे हो तो क्यों मार्क्स कटेंगे। अभिजीत समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल। ओके गुड। डाउनलोड हो रहा है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ये ना कॉल कभी भी खत्म हो जाएगा, हम क्या करते हैं इसको ड्रॉप करके वापस यही लिंक ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 40 मिनट का उस पर वो होता है ना वेटिंग, मतलब 40 मिनट से ऊपर फ्री अकाउंट पे नहीं कर सकते। तो तुम लोग वापस यही लिंक ज्वाइन करोगे? हैंग अप करके वापस स्टार्ट करूं लिंक? यस गाइस, ओके। okay, I'll hang up and I'll start the call again।